I welcome you all for the first lecture of Animal Ecology. We are going to study today about concepts of environment, population, community and ecology. Let's see about environment first. All the things encompassing a living organism constitutes to its environment. Encompassing मतलब आसपास, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के आसपास जो कोई भी चीज़ रहती है वो उसका एनवायरनमेंट बनाती है. Environment has two factors. First one is biotic factor and the second one is abiotic factor. As the name suggests, biotic, this word has the term bio means living organisms. So biotic factors will include the living organisms, whereas abiotic, मैं वर्ड को स्प्लिट कर रही हूँ. इसी तरह से आपको टर्म्स आगे भी मैं आगे के लेक्चर्स में स्प्लिट करके उसकी मीनिंग समझाऊंगी. दिस इज़ द वे आई हैड फॉलोड एज अ स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द सेम मेथड. जब हम अबायोटिक बोलते हैं तो उसमें अ मीन्स यहाँ पे एब्सेंट होता है. सो abiotic factors means where the living organisms are not there, that means the non-living organisms are included in it. So abiotic factors include non-living organisms, whereas biotic factor includes the living organisms. Now here you can see there are different living organisms which can be seen. So this is biotic factors, that is all living organisms. And now you can see some abiotic factors, that is non-living organisms like water, light, temperature, humidity, gases and soil. Although it cannot be soil and gases is not visible, still they also form abiotic factors. Now let's see about population. A group of individuals of same species at a certain place at a given time is called as population. तो population एक species के एक जगह पे एक टाइम पे रहने वाले organisms को हम population बोलते हैं. While we consider the population, the characteristics of individual members no more exist and the characteristics are based on the entire group. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तब इंडिविजुअल मेंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को इकट्ठे कंसिडर किया जाता है. पॉपुलेशन आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द स्पीशीज कंपोजिशन. द फर्स्ट वन इज मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन. मोनो मीन्स वन और सिंगल, whereas the other one is polyspecific population. Poly means many. यहाँ specific का मतलब है species. So जब एक species होती है पूरे population में तब हम उनको monospecific population बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा many species होती है तब हम उसको polyspecific population बोलते हैं या फिर mixed population बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा species है. इसी मिक्स्ड पॉपुलेशन को आगे चल के हम देखेंगे कि इसको एक पॉपुलेशन बोलने की जगह कम्युनिटी बोला जाता है. नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, natality that is birth rate, mortality that is death rate, age distribution, population fluctuation, population dispersal and biotic potential. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं. आपको पॉपुलेशन के बारे में पूरा एक यूनिट है जिसमें हम इस बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. Now let's see what is community. When all types of organisms in a given area are considered together, we call it as a community. तो community क्या है? एक एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म सारे होंगे उसको हम इकट्ठे क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे. नाउ कम्युनिटी किससे बनती है? इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन ऑफ ऑल टाइप्स. तो बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठे मिलके एक कम्युनिटी बनाती है. Community studies involve study of interactions between the biotic components.
तो जब हम कम्युनिटी स्टडीज़ करते हैं तो उसमें हम बायोटिक कंपोनेंट्स जो कोई भी हैं, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरैक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं. नाउ देयर इज़ ऑलवेज अ क्लोज इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑल्सो. सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं होता है, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में भी इंटरैक्शन होता है एक कम्युनिटी में. एंड एक एरिया जो एक कम्युनिटी ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं बायोटोप. तो बायोटोप इज अ एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी. Now let's see characteristics of community. Again, let me tell you that we are not going to see it in detail. We have another chapter based on community. Now we are just going to list down the characteristics. So the characteristics such as community structure we are going to study, ecological indicators, ecological stratification, ecotone and edge effect, ecological niches, ecological equivalence, and ecological successions. So these all things we are going to study in coming lectures. Now any community consists of three basic living elements. The three basic living elements of any community is going to be producers, that means plants, consumers, that is herbivores आएंगे इसमें, carnivores आएंगे, and decomposers, that is इसमें बैक्टीरिया और बाकी जाएंगे जो उसको decomposition करेंगे. So there are three basic living elements: producers, consumers and decomposers. Now next we are going to see what is ecology. Now whenever we talk about environmental science, आप लोगों ने प्रीवियस अपने क्लासेस में या स्कूल्स में environmental science EVS का पेपर पढ़ा होगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, पोल्यूशन बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल जियो साइंसेस है, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट है. तो अगर हम ये सारे ब्रांचेस देखें तो उसमें पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है इसी को हम बोलते हैं ecology. So ecology is nothing but environmental biology. Ernest Haeckel in 1866 had defined this term ecology as the branch of science which deals with relationships of organisms to their organic and inorganic environment. तो अर्नेस्ट हैकेल के हिसाब से इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की. कैसे, किसके साथ की रिलेशनशिप्स? तो ऑर्गेनिज्म की उनके ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ वाली रिलेशनशिप और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ की रिलेशनशिप. सो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से ही यहाँ पे हमको बोलना है बायोटिक कंपोनेंट से उनका इंटरैक्शन, और इनऑर्गेनिक से हमको बोलना है अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन. सो जब हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन पढ़ते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी. नाउ विल सी द ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी लाइक पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, पैलियो इकोलॉजी, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैबिटेट इकोलॉजी. तो ये कुछ मैंने जस्ट लिस्ट डाउन किए हैं ब्रांचेस. देयर आर फर्दर मोर ब्रांचेस बट दीज आर द मेजर वंस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर पेपर. Now why we are studying ecology? Let's see the scope of it. Now ecology is an interdisciplinary subject and various subjects which you might have opted will be related to this subject ecology, like zoology, क्योंकि आप ये तो zoology का ही एक पेपर बोल के पढ़ रहे हो, then botany, then chemistry, then physics. आई एम क्वाइट श्योर इन चारों में से कोई ना कोई मैक्सिमम आपने 3 सब्जेक्ट तो ऑप्ट किए ही होंगे. माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, यस स्टैटिस्टिक स्टडीज़ भी यूज़ होती है इकोलॉजी में.
मैथमेटिक्स डेरिवेशंस वगैरह करते हैं, जब हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं मैथमेटिक्स का हेल्प लेके। टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में इकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, कैसे हैबिटेट में रह रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी टैक्सोनॉमी स्टडी करते टाइम। टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिकेंट हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम कैसे जीन फ्लो कर रहा है पॉपुलेशन में, ये पढ़ने के लिए हमको इकोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है। Now we are going to take few example where a ecological backlash is seen. What is now this ecological backlash? ये ecological backlash ये होता है कि जब हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय whatever steps we have taken वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर कर देते हैं एक प्रॉब्लम, लेकिन उसका आफ्टर इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने रेज हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, क्या बोला गया, पेपर यूसेज को रिड्यूस कर दें हम, कि हर चीज़ पेपर की बनी रहती थी तो पेपर को यूज़ करना हम कम कर देंगे तो पेड़ कटने कम हो जाएंगे। सो टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन पेपर यूसेज हैड टू बी रिड्यूस्ड। नाउ रिड्यूस हम कैसे करेंगे, किसी और चीज़ से रिप्लेस करेंगे पेपर को, तो हमने क्या किया, हमने पेपर को रिप्लेस किया किससे, प्लास्टिक से। हमने वी रिप्लेस द पेपर विद प्लास्टिक, बट एज अ रिजल्ट हमको फ्यू डिकेड्स बाद क्या दिख रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया है, कि प्लास्टिक हर जगह है। एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, कि कितना ज़्यादा हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और वो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं हो पा रहा है। एज अ रिजल्ट इट इज़ एक्यूमुलेटिंग। सो ओरिजिनल प्रॉब्लम वॉज डिफॉरेस्टेशन. We might have resolved it to some extent by replacing it with the paper with plastic, but the new problem has arisen, that is plastic pollution. So this is called as ecological backlash. अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ स्कोप में, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली सोच के समझ के स्टडी करके अगर डिसीजंस नहीं लेते हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर हम हमारी इकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, तो जो कुछ भी हम डिसीजंस या जो कुछ भी हम स्टेप्स लेंगे उसके इफ़ेक्ट्स हमारे फेवर में नहीं होके हमको उल्टा और नुकसान पहुंचाएंगे। आपके सामने ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा मोटिव कुछ और था, हम करना कुछ और चाहते थे और हमको मिल कुछ और गया है। क्यों? क्योंकि हमने जब ये प्लास्टिक यूसेज के बारे में यूज़ कर पेपर को रिप्लेस किया प्लास्टिक से, तब हमने उसके बारे में ये सही से स्टडी की नहीं कि प्लास्टिक कितना एक्यूमुलेट होगा, वो कितना फास्ट डिग्रेड हो सकता है। अगर हमने प्रॉपरली ये स्टडी की रहती तो आज हमको ये प्रॉब्लम नहीं आई रहती। इसीलिए इकोलॉजिकल स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एंड अराउंड अस। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल बैकलैश। Again, trees cut down, that is deforestation was done purposefully. Deforestation करते थे, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्यों करते थे? एग्रीकल्चर एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, फूड की डिमांड बढ़ती गई, वो फूड की डिमांड इतनी बढ़ती गई कि जगह नहीं सफिशेंट पड़ने लगी एग्रीकल्चर के लिए, कि जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशेंट नहीं है। तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो डिफॉरेस्टेशन किया गया, जान के डिफॉरेस्टेशन किया गया। सो एज अ रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ गई, मतलब फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया, फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। पर एज अ रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है तो हैबिटेट लॉस हो गया, बायोडाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म की थी इट वाज लॉस्ट, एंड ऑल्सो constant flooding of major rivers started. If you will see the history, you will see few decades back, जब ये ऐसा नहीं था, या फिर हम एक आधे सेंचुरी पहले की बात अगर के लेंगे, जब डिफॉरेस्टेशन इतना नहीं हुआ था, फ्लडिंग होती थी, लेकिन फ्लडिंग इतनी कॉन्स्टेंटली नहीं होती थी। वी आर हियर सेइंग कॉन्स्टेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। अभी हमको बहुत कॉमन फीचर हो गया है कि इस साल इधर फ्लडिंग हो गई तो अगले साल कहीं और फ्लडिंग हमको दिखती है। सो इट इज़ अ कॉमन फिनोमेनन। क्यों? बिकॉज जब पेड़ काटे गए, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तब पेड़ क्या करते हैं? व्हाट डू ट्रीज डू? दे होल्ड द सॉइल।
So when the trees are cut down, the soil become loose and soil erosion is very easily possible. As a result, the major rivers they start flooding. सॉइल क्योंकि लूज़ होते जाता है तो रिवर अपने साइड से कट करते जाती है, क्योंकि उसको होल्ड करने वाले ट्रीज़ जो है वो हमने काट दिए हैं. सो एज अ रिज़ल्ट हमारा पर्पस था फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का, वो सर्व हुआ, लेकिन हमारे सामने नई प्रॉब्लम आ गई जैसे हैबिटेट लॉस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फ्लडिंग. सो अगेन not properly planned and not properly thought of the processes and the steps taken. So hence again proving that study of ecology is important in order to understand the consequences which will be arising because of the decisions we take. तो इसलिए ecological study important है. Thank you for listening to me patiently. अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि देयर इज़ अ कंपल्सरी असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस वीडियो. दिस इज़ द लिंक गिवन टू इट. So you have to go and appear for that assignment. Now if you have any doubts, any queries, you can contact me through my WhatsApp number or through my email address, or you can also log on to my blog to solve your queries. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. ये वीडियो एकदम प्रिलिमिनरी और बेसिक है. इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सिर्फ पढ़े हैं. हो सकता है आपको अब्रप्ट लगे हों 4 कंसेप्ट्स, पर क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो हमको पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और इकोलॉजी ये 4 एस्पेक्ट्स पढ़ने ज़रूरी थे, क्योंकि यही 4 पिलर्स हैं, 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी सारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी बेस्ड है. So we studied 4 things: environment, population, community and ecology. ये चारों चीज़ें 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम आगे के सारे हमारे लेक्चर्स बेस्ड रहेंगे. ये आपको इस आगे के लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग इनके ऊपर से ईजीली आएगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी at any time through these modes. And if you have any लैंग्वेज बैरियर या आपको समझने में दिक्कत आ रही है और यू नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट टू. थैंक यू.